Anyway, so now we will start our next part of this season, right, or section. So till now, whatever we have covered about the magnetic field, and then magnetic force related to the magnetic field, and then we covered about the magnetic dipole moment, and then dipole-dipole interaction, and force because of one magnet on the other one, right? We had also discussed about these things. And in other part we have also discussed magnetic field due to current carrying wire, right? So in today's section we will be discussing about the further advancements or application of the current carrying wire, right? So we will be discussing about the magnetic field because of the current carrying wire in different aspects, right, and in with different applications. So with some special cases we will be considering those all the concepts which we have already covered. So I would like to start from here. So one thing I would like to ask to everyone, that whatever I told you in last class, have you completed all the works regarding this section? Tell me everyone, because only lecture is not fruitful, right? Yes, sir. Yes, and other guys also. Have you got any problem? No. No problem. Okay, that's fine. So don't cheat, okay? I hope that you all are working. And if you are cheating, so you are cheating to yourself, right? Not me. So now look at a special case. First one. If the wire infinitely long, then magnetic field at P as shown in the figure is given by theta 1 equal to theta 2 and 90 degrees, something like this. You know this thing, right? And here B is proportional to I upon R. That means if I have a wire, very long wire, yeah, very long wire, and you are calculating magnetic field at P point at distance R, right? So it will be something like this, proportional to I upon R. That means if you increase the current, then magnetic field will increase proportionally. If you increase current 5 times, B will go 5 times. If you decrease R 5 times, B is going to increase 5 times, right? That means suppose here at 10 you are 10 centimeter, now you decrease 10 by 2 times, right? Like here at 50, so magnetic field will increase by 2 times. Are you getting point? So this is the scene in the special case, right? So now going ahead, if the bias, सर yeah, यहाँ पे एंगल hmm, 90 डिग्री कैसे हो गया? यहाँ पे तो इनफाइनाइट वायर है ना, तो yeah, angle कैसे हो गया, right? So in tomorrow, sorry, yesterday class we have discussed that suppose it is finite length of wire, right? And suppose it is P point, so it's we have an angle, suppose this is angle theta, right? So now you increase this one, now it will be like this, now it will be like this, like this, like this, and there's this is at very infinite point. So we are considering this angle, right? This angle. So you can see over here, here. At infinity, what you will find that this length and this length is going to equal. So theta is going to theta is going to. What was your question? Please tell me. ये एंगल है जो 90 डिग्री कैसे हो गया? Okay. Angle is how it's 90 degree. Okay, I would like to go last section. Where was result? We got this was result, na? Yeah, this was result. So where was picture? Just go there. Yeah, look at here. It is theta 1 over here, right? So angle between current and this is R vector, right? So angle between the R and this is current over here, right? So this one and this one, this is your theta, right? So now
your question is what will happen when it goes to what do you say, infinity, right? So there were two statements there which we had discussed earlier. Yeah, look at here. Infinite state wire semi, and in this theta 1 theta 2 is equal to 0 degree, right? But you are telling 90 degree, huh? Yesterday we discussed about this theta 1 theta 2 is equal to 0 degree, right? Yeah, Mushkan, what's confusion? It is 0 degree, not 90 degree. सर कल हम लोग पढ़े थे कि इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर रहेगा तो वहाँ पे दोनों एंगल 0 डिग्री रहेगा, Yeah, बट यहाँ पे है जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो गया। कहाँ पे भाई, दिखा मुझे। यहीं पे नोट्स पे आप बताएं। Here is 90 degree. Here using theta 1 theta is equal to, okay, this one. यस सर। Okay, no. Like you can see here, mu naught I by 2 pi r, same result na there. So it is r over here. So if we like this, right, this is theta 1. So if you go infinite, so this distance and this distance become equal. So 0 degree, not 90 degree. So I think it is wrong. Same result is there in last class, right? Yeah, same result. Okay, so that is mistake, right? And you can see this side it is cross and this is dot. That is, if you put your thumb in the direction of current, then you will find that at this side you are going inward and this side it is coming outward, right? Okay, so here if the wire is infinitely long, put P is as shown in the figure. The direction of B at various points is shown in the figure at P. Okay, so if condition is so, right, so in this condition same thing we had discussed, right? Okay, so here this will be 90 degree and this will be 0 degree, right? So this is the same. Okay, so now we will go for the next. Till now have you any doubt? किन्हीं के पास कोई डाउट है तो ले लेता हूं मैं. Yeah, tell me, till now have you any doubt? नो सर। No, good. Anyone? देखो ये the purpose of this class is only to discuss your problem, right? That is the main thing. If you don't discuss, then mean wastage of time. Not only your time is going to waste, even my time will also going to waste. So wherever you find problem and where do you stuck while solving the questions or understanding the theories, just ask question, right? That is the main thing, the main mission of this class. So now go to head. In the figure shown, there are two parallel wire lines. There are two parallel wire lines, 1 and 2, right? Understand very well. Carrying currents 2I and I, consider points A, C, D on the line perpendicular to both the wires and also in the plane of the paper, right? So we have a point A, C and D. This is wire number 1 and this is wire number 2. Wire number 1 carrying 2I current, right? And wire number 2 carrying I current. That is written here, 2I and I, right? Okay, and the direction is in this direction and the direction of current is it is in this direction. So you can understand these all the things very well. So now question is find B at A, C, D. So A is here, C is here and D is here. So you can calculate very easily. It is infinite wire, right? So because of infinite wire, so do you want to show this? Are you observing this whiteboard? Are you seeing whiteboard? यस सर। Yeah. So I want to write here something. So this is infinite wire, current carrying infinite wire, and this is also infinite wire. Now you have to calculate here, right?
So just suppose it distance is a and this is 2a, right? So from here it will be 3a. So at this point what will be your magnetic field? Suppose it is 1 and it is 2. So here magnetic field at a, because of magnetic field due to wire 1 plus magnetic field due to wire 2. So for 1 what will be there? So it is infinite, so for infinite mu naught I upon 2 pi a is the distance. So what will be direction? So it will be this way. So b, so because of b we have direction of this one, right? And we will write value over here. And because of beta 2, so sorry, current in this direction, then it will be outward, right? But here you can see current is in this direction, so here it will be downward. So for downward we will write this one. So if one is plus, one is minus, so here for if you put plus for beta 1, then minus will be for this. So you can write here value of this. So mu naught I upon 2 pi a, if it is plus it will be minus, and the distance is 2a and plus a, that is 3a. So mu naught, now it is 2i, right? 2i, in this current we have a 2i and this I. So we will write this one and we will add, one is plus and minus, so whatever answer will come you have to write. Similarly here, so similarly here, and same thing is here, right? So that's shown in this figure, you can observe here. So ये बन जाएगा ना सबसे? बोलो yes या no, tell me fast. Yes, sir. सर बन गया था। अब बन गया, वेरी नाइस. एंड सूरज, सूरज नहीं जुड़ा आज I don't know. क्या? What's saying? I don't know. बीमार तो नहीं पड़ गया? ओके. एंड इंदु जुड़ी है, तुमको समझ में आया जी? यस सर, बना ली। ओके ओके राइट. यू नो देयर इज नो नीड, यू नो मैं ये रहा है ना कि बना लिया आंसर आएगा. नो, माय मिशन इज टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, राइट? इफ सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन कम in examination, you can answer that, right? So that's the whole thing. Okay, now move to the next. In the figure shown, two long wire W1 W2. So we have a wire W1 and W2, right? Wire is here, something like that, we have a two wire, right? So in one current is going inward and in other current is coming outward, right? So that is the same. Are placed parallel to each other and parallel to z axis. The direction of current in W1 is outward and outward the rate was B. So find the B at P and Q, right? Same thing is there. You have to calculate P at P points. So P is where? P is here and Q is here, right? So point is in XY plane, right? It is a good question. So now what I want to show you, that just come here and what is so? वही नेक्स्ट कैसे आएगा? +1 कर नोट शेप्स इमेज डॉक्यूमेंट्स नोट्स डायरेक्शंस. अरे भैया ये क्यों आ गया? So sad. Anyway, I come to there. Yeah, look at here. You can see something like that. This is z axis, right? Z axis, and this is like, it is y and it is x, but current is something like that, right? In z direction, right? Two wires is like this, so current is going inward and coming outward, something like that, and it is xy plane, right? So you have to calculate B, you have to calculate magnetic field at point P and point Q, and that point is in xy plane. You have to understand, right? It is something like that. Just to consider your wall, right? दीवार को आप समझ लो. दीवार के अंदर दो वायर जा रहे हैं जो कि दोनों पैरेलल है, राइट? और दीवार पे दो पॉइंट है P एंड Q, उस पॉइंट पे निकालना है. अंडरस्टैंड इट? समझ में आ रही बात? और एक वायर यहाँ, एक वायर यहाँ पे है और एक दूसरी यहाँ पे है जो कि z डायरेक्शन में है, राइट? ये बिल्कुल इस तरह से, राइट? तो अब यहाँ से मेन चीज क्या है? द मेन थिंग इज डिस्टेंस, नॉट other things, because wire is infinite. So if wire is infinite,
So what is the magnitude? So magnitude is this one. So only need is to calculate perpendicular distance. What? Perpendicular distance between the points and wire, right? So that's in is here. This is a wire and this is wire and this is P point. So it will be, you can calculate from here, right? And because of this wire, we have a magnetic field in this direction. Because of this wire, magnetic field in this direction, and angle between these two is this. So, and since two-way distance, magnetic field is I upon R, I is same and R is also same. So magnetic field will be same because of these two. So here B1 B2 is equal to B, and what will be the value? So value that's I have calculated that BP is 2B cos 60 degree, and from there you can calculate, as soon as. Very good answer here. So here B1, and similarly you can calculate B2, you can calculate tan theta, and then you can calculate magnetic field from here. So just tell me everyone, have you done these questions or can you do that? Tell me, or should I go for this? सर बनाए थे तो डॉट आया था वहाँ पे, डायरेक्शन कैसे लेंगे? Yeah, that's nice. How will you take direction, right? Okay, no problem. You have to visualize 3D, right? You have to visualize 3D, then nothing else, no problem is there. So I want to visualize you 3D things, right? Okay, right, like you can see here, this is wire, and here it is. So one thing is very clear, it is 60 degree, it is 60 degree, no doubt, because P point is at middle, right? P is at middle point, right? Here middle. So it will be 2A and it will be 2A. Why? Because this distance is root 3A. This length is root 3A that is given. So by Pythagoras theorem, you can find this is 2A and this is also 2A. Then it is certain it's 60. So it will also 60. Okay. So now we have a wire this one. And because of this wire, what will be the magnetic field? So just to think, here current is going in outward, coming outward. Just to put your thumb in coming outward direction, right? So you will find your finger will be in this direction, right? And that is perpendicular of this radial direction, right? So it will be in this direction. Similarly here, just to put your thumb in inward, right? And you will find that your curling finger is coming in this direction. यहाँ तक क्लियर है तो बताइए. नहीं सर, फिर से बताइए, रिपीट. Okay, don't worry man. Just look at how to say, अब मेरे को वीडियो ऑन करना पड़ेगा. Yeah. My face is visible to you, tell me. Okay, I have to stop presenting, then it is possible. Why it is not so? मेरा चेहरा दिख रहा है? नो सर. What are you observing on the screen? नोट्स. You are seeing notes. Okay. लेकिन देखो, थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको अपनी माघी भाषा में, राइट? देखो, जो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, राइट, जो लेफ्ट साइड वाला है, तो आप अपना अंगूठा को अपनी तरफ रखो, क्योंकि करंट आपकी तरफ आ रहा है, राइट, लेफ्ट साइड वाला में. तो अपने तरफ करो, तो अपने तरफ करोगे तो अंगुली जो है आपका, अंगुली किस तरफ होगा? ये B1 की तरफ होगा. देखो, हो रहा है? भाई अनम्यूट करके रखो, जब मैं आपको बता रहा हूं तो अनम्यूट करके रखो ताकि जल्दी से आप आंसर दे सको. हेलो. यस सर. ये जो लेफ्ट साइड में जो करंट है वो अपने तरफ, अंगूठा का डायरेक्शन अपने तरफ रखो, और ये जो अंगुलियां हैं वो B1 की तरफ है या नहीं? देखो,
सर नहीं दिखा रहा है पहले नोट्स। अच्छा, नोट्स नहीं दिख रहा है। दिख रहा? नहीं नीचे वाला नहीं दिख रहा है ना? हाँ, नहीं। क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं दिख रहा। क्या देख रहे हो तुम? ये नहीं दिख रहा ट्रायंगल? नहीं। नहीं, क्या दिख रहा है? ट्रायंगल से थोड़ा ऊपर वाला क्वेश्चन खाली दिख रहा है हमको। ओके, दिखाता हूँ आपको सारा। या लुक एट नाउ। यस। या तो यहाँ पे देखो, ये वाला मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप अंगूठा रखो। तो जब आप अंगूठा रखोगे, किधर अंगूठा का डायरेक्शन अपनी तरफ रखो, तो ये जो अंगुली कर्ल होगा वो इस तरफ है ना, इस तरफ देखो। यस सर। या और यहाँ पे अंगूठा को अंदर की तरफ रखो, तो यहाँ पे जो अंगुली है इधर घूमेगा। यस सर। यस सर। Yes. So you have B1 and B2, and it is 90 degree, we know, and you know. So you will find that this is 60 degree, this is also 60 degree. यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, good. अब देखिए 60 डिग्री कैसे हुआ? 60 डिग्री कैसे होगा? टोटल कितना होता है? 360। 360। हाँ, तो ये देख लीजिए, ये आपका 60 डिग्री हो गया, ये 90-90 हो गया। तो ये दोनों रहेंगे, चूंकि ये दोनों इक्वल एंगल बना रहे हैं तो ये 60-60 होंगे, चूंकि 120 से बचा ना इधर। यस। मुस्कान, यस सर। ये 90 होगा, ये 90 फिक्स है, ये 60 ऑलरेडी हो चुका है, तो जो बचा वो दोनों बराबर बराबर बट गए, दैट्स इट। अब देखो दोनों डिस्टेंस 2a है, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड b1 b2 मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब डायरेक्शन अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम होंगे, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, करंट भी दोनों में सेम है। अगर करंट अलग अलग होता तो फिर अलग अलग मतलब मैग्नेटिक फील्ड होते, राइट। तो अब देखो bp, p पे निकाला जा रहा है, p पे। तो p पे कितना हो जाएगा? देखो 2b cos 60 डिग्री, ये कैसे हुआ? एक डायरेक्शन इधर है, दूसरा इधर है। अब ये इस तरफ कंपोनेंट ले लो, तो इसका कंपोनेंट इधर ले लिया और इसका भी कंपोनेंट इधर ले लिया, इसका कंपोनेंट इधर ले लेगा, इसका कंपोनेंट इधर। आई मीन ये वाला देखो, ये जो इस तरफ है ना, इसका कंपोनेंट लीजिए। तो कंपोनेंट लोगे तो क्या होगा? एक इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ आएगा, इसका भी इस तरफ जाएगा, इसका भी इस तरफ जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। मतलब ऐसा समझो, इधर मैं फिर से बता रहा हूँ, ये ऐसा आपका है, तो इसका कंपोनेंट लेंगे इस तरफ और लेंगे इस तरफ, इसी का इसका कंपोनेंट लेंगे तो इस तरफ और इसका भी लेंगे इस तरफ, तो ये दोनों कैंसिल कर लेगा, सिर्फ इस डायरेक्शन में दोनों का बचेगा। तो वही चीज यहाँ पे है, 2 टाइम्स हो गया b cos 60 डिग्री, तो ये आपका हो गया ये। अब डायरेक्शन किधर है? उस तरफ, जे कैप में, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन जे कैप लगा दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर यहाँ तक? यस या नो? यस सर। Yeah. And now we will move for the next question. Next, what is this next? That is on Q now. Yeah, Q is here. I want to erase this one so that you can visually write. So Q is here, right? So you can see here, एक चीज समझिए, P का डायरेक्शन ऑलरेडी पहले J में था, बट ये क्या है, इसका डायरेक्शन I में भी है और J में भी है। अगर मैं यहां से एक R बना दूं, R, तो ये जो R वेक्टर है वो क्या है? A I कैप प्लस A J कैप, और हमारा ये है, राइट। और मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड होगा R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो a स्क्वायर मीन्स √2a। क्लियर है? समझ रहे हो? ये हमारा Q पॉइंट अब यहाँ है, तो Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो R वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो गया। X में A है और Y में भी A है, A देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट में, तो I का प्लस J का मैग्नीट्यूड क्या होगा तो तुम जानते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो यही चीज यहाँ पे आप आ जाइए इधर, देखो B1 क्या होगा, राइट। What will be B1? So B1 is very simple, mu naught of pi upon 2 pi and R, right? R. So R is how much? You can see here. You can see here. I should erase this once again. Look at here. So B1. So B1. So here it is 1.
So just to write from here, so this will be in this direction, that is not in this direction, just to what do you say, here it is current coming outward, so here you will find that B will be in the something like in this direction, okay, and from here because of this you will find, you know, in this direction something like that. So we don't go for the direction, we have direction, so from there we can calculate. So just to think what will be, what is this distance, right? You have to calculate this distance, right? Like you know mu naught I upon 2 pi a. So a is distance between this. So what is distance? So the distance is a here, and what is this? That is a comma 0. So you can calculate from distance formula, correct? Yes. So Yes, sir. so what will be distance of this one? Tell me. Mm, Root 5a. Sure. Yes, sir. I think I told wrong. Yeah, it should be minus a, right? Yeah, minus a coordinate. क्लास 11 में पढ़े थे ना कोऑर्डिनेट, नहीं 10 में ही पढ़े थे, ये तो 10 में ही तुम लोग पढ़े हो। तो देखो रूट 5 ये हो गया यस है, उसी तरह से b2 निकालिए, तो b2 से देख लो फिर, b2 से क्या होना है, here it is b2, so b2 where it is b2, yeah it is on x axis, so from here how much distance is, this is a distance, right? So you can see here this is b2, right? So not tan theta that is b1 upon b2, you know. So from yes. here, I don't know what here it in here, right? A upon 2a, but here it is in this one, no, why it's so, सर yeah, स्क्रीन बहुत छोटा दिख रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। screen, it is problem with everyone, नहीं, okay, anyway, so now look at here, this is very important, right? This is Q point, right? From here I can make you understand about the direction. So it is 1 and it is 2, right? So because of 1, direction will be in this direction. Just make me sure, tell me everyone. ये B1 का डायरेक्शन इस तरफ होगा ना, जब आप अंगुली को अंगूठे को अपने तरफ रखोगे ये फर्स्ट पोजीशन पे, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे तुम्हारा अंगुली इस तरफ जाएगा, ये 90 डिग्री होना चाहिए ऑलवेज, राइट? तो ये इस तरफ होगा, यस या नो? यस yes, सर। sir. और यहाँ पे अंगूठा अगर अंदर तरफ रखोगे तो ये इस तरफ होगा B2, ये भी श्योर हो? तो अब देखो दो चीज आ गया, Yes. B1 इस तरफ B2 इस तरफ, तो रिजल्टेंट निकालना है, राइट? तो देखो इस तरफ क्या होगा, B1 cos थीटा, राइट? और इस तरफ होगा B1 B1 sin थीटा, राइट? और इस तरफ क्या है, B2 है। तो देखो अब हमको B लिखना है, तो B लिखना है तो क्या करेंगे, आई कैप में होगा वो लिखेंगे, अब प्लस में जो जे कैप में होगा वो लिखेंगे, ठीक है? तो आई कैप में क्या है हमारा, आई में देखो ये है B2 माइनस B1 साइन थीटा, B2 इस तरफ है और इस तरफ B1 साइन थीटा है, तो B2 माइनस B1 साइन थीटा, यू कैन सी हियर, राइट, इन आई डायरेक्शन। जे में सिर्फ B1 cos थीटा है, दैट्स रिटन B1 cos थीटा जे कैप, राइट? एंड फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट, you know, sin theta is equal to 1 by root 5. I think this is wrong here, right? Here it is wrong na, b1 upon b2, you know this thing, so here it's also a mistake, right? You will make correct it, clear? So here it is, Yes. we have put the value of b1 and b2 right here, this is in minus form, so from here you can calculate cos theta and this, so you know you can put the value here value of theta, like b is equal to b1 cos theta j cap, b2 minus b1 sin theta j cap, so from here you can calculate theta, right? A by 2a, how it will be a by 2a, b1 and b2,
we know it will be b1 upon b2, so how it is 1/2? सर वहां से या W1 है और Q है और W2 है, तो एक राइट एंगल या एंगल बनेगा, तो वहां से W1 पे जो एंगल बनेगा okay, थीटा from वही geometry, okay, it's all right. From geometry you can get tan theta and you can use value of this one and just you put the value of sin theta and cos theta, right, and you will get this result. अब कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? नो सर। नो। सबसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस बनाओगे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और ऐसा ही क्वेश्चंस आते हैं और अभी और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, वी विल सी, राइट। लुक एट हियर in the figure shown a large metal sheet of width w, metal sheet we have a metal sheet, right, that means एक जैसे we don't have wire, we have infinite number of wire, right, so बहुत सारा वायर को पास पास अगर रख दिया तो वो सीट बन जाएगा, ओके, so that is the case here. so जैसे कपड़ा होता है ना, जो कपड़ा होता है, जैसे मान लो धोती की बात करते हैं, तो धोती इस तरह से है, तो धोती में पतला पतला ऐसे लंबा लंबा लाइन होता है ना, ये साड़ी वगैरह जो भी, तो वैसा ही ये सीट है, मेटल सीट है, ओके। सो मेटल सीट, लार्ज मेटल सीट विद W एंड फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विच लाइज इन द प्लेस ऑफ द सीट, राइट। तो ये P पॉइंट है, A डिस्टेंस यहाँ से है। अब देखो यहाँ पे तो बहुत सारे लाइन हो गए, यहाँ पे बहुत सारे वायर है इसमें, यहाँ से मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत सारे वायर हैं, उस सारे वायर के कारण हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो दैट इज वेरी सिंपल, यू हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन, राइट, यू हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन। सो हाउ विल यू डू दैट? सो दैट हाउ विल यू डू दैट, तो वो कैसे करेंगे हम लोग? तो बस उसमें क्या करना है, जैसे इसमें हमने क्या रखा कि बहुत सारे वायर है, राइट, तो इसमें से मान लो एक वायर तुमने ले लिया, राइट, एक वायर आपने ले लिया, ओके, एंड वो कितना डिस्टेंस है, तो P से मान लो x दूरी पे आपने ले लिया, राइट। तो देखो यहाँ से, अब देखो मैं अलग से फिगर नहीं बना रहा हूँ, जो फिगर है उसी से मैं समझा दे रहा हूँ कि आपने एक वायर ले लिया अंदर से, ये तो सीट बहुत चौड़ा है बट उसमें से आप एक ने काट लिया जो कि dx लेंथ का था ये, और x दूरी पे था कहाँ से, P से। क्लियर है? ये एलिमेंट्री मेथड है जो कि आपको हमेशा यूज करना होगा फिजिक्स में मैथ लगा करके, तो ये काफी जरूरी है, इसको प्रैक्टिस भी कर लेना आप लोग। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% मैं कहता हूँ कि आना ही आना है, चाहे वो रोटेशनल में आ जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आ जाए, इलेक्ट्रोस्टैट में आ जाए, मैग्नेटोस्टैटिक्स में आ जाए, क्लासिकल मैकेनिक्स में आ जाए, ग्रेविटेशनल में आ जाए, राइट, कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आ ही जाएगा, राइट। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी से आपको याद रखना है कि x दूरी पे P पॉइंट है और ये dx हमने ले लिया, जबकि ये है बड़ा, ये बड़ा है बट इसमें हमने छोटा एलिमेंट ले लिया, तो dB क्या होगा, म्यू नोट, हम लोग जानते हैं म्यू नोट इंटू आई अपॉन 2 x जो डिस्टेंस है। अब हमारे पास I क्या होगा, राइट, तो देखो ये पूरी पट्टी थी, उससे करंट I जा रहा था, तो छोटा पट्टी से कितना जाएगा, राइट, थोड़ा सा समझो, बचपन में आपने सीखा था एक नियम, यूनिटरी मेथड, राइट। तो देख लो ये है W से करंट जा रहा है I करंट, ठीक, तो अब जब हम छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, छोटा सा, तो इससे कितना करंट जाएगा, तो देखो अगर 1 यूनिट से करंट बोले कि भाई ये जितना चौड़ा है इससे जा रहा है I, तो 1 यूनिट से कितना जाएगा, तो 1 यूनिट से I अपॉन W, 1 यूनिट से कितना जाएगा I अपॉन W। अब टोटल इसका लेंथ कितना है, तो dx है, तो इंटू हम कर देते हैं dx, तो यही चीज यहाँ पे है। समझ में आ रहा है बात? यस सर। नहीं आया कुछ लोगों के समझ में? ओके, लेट मी टेल यू वंस मोर, नहीं आया तो नहीं ही बोलना, ठीक है। देखो 10 आदमी में, वो सॉरी, 10 आदमी जो है एक काम को 100 दिन में करता है, राइट, 10 आदमी एक काम को 100 दिन में करता है, राइट, तो एक आदमी कितना दिन में करेगा, तो कहते हैं 100 गुने 10। उसी तरह से अगर यहाँ पे उल्टा बोल दिया जाए कि 100 आदमी जो है एक काम को 10 दिन में करता है, राइट, तो 100 दिन में
अरे यार कुछ में उल्टा हुआ, 100 आदमी। रुको रुको। ओके 100 आदमी 10 दिन में कर रहा है, हाँ तो एक आदमी, सॉरी 100 दिनों का काम 10 मजदूरों के द्वारा किया जा रहा है, तो एक दिन में यार पैसा लेता हूँ मैं, ये थोड़ा इसमें गड़बड़ हो जाएगा, मैं खुद कंफ्यूज कर रहा हूँ, तुम लोग इसको नहीं समझ पा रहे हो। खैर देखो मैं समझाता हूँ, अच्छे समझाता हूँ। देखिए ये W लेंथ है राइट, ये W लेंथ है राइट, तो W लेंथ को मान लो मैंने 100 मान लेता राइट, तो 100 लेंथ से जब विड्थ 100 है तो करंट जा रहा है I। अब मैं आपको बोलूं कि लेंथ 1 से कितना जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर मान लो है, तो 1 सेंटीमीटर से कितना जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर में I जा रहा है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना जाएगा, I बटा 100, I by 100। और ये 100 इज नथिंग बट W हो गया। Yeah। अब बोले कि 10 सेंटीमीटर से कितना जाएगा, तो 1 से इतना है, तो 10 से, तो 10 से गुना कर देंगे 1 से, तो वही चीज है यहाँ पे I बाई W यूनिट डिस्टेंस के कारण हुआ। अब dx चुकी है, विड्थ कितना dx, तो dx से गुना कर दिए। यहां तक अब क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं क्लियर है तो फिर जाके क्लास 7-8 का मैथ पढ़िए फिर। इसीलिए तुम लोग कहते हैं ना कि बच्चों को थोड़ा पढ़ाया करो राइट। वैदिकुलम फिर से क्लास तुम लोग को दिया जाएगा, तो पढ़ाना, विशाल से जाकर मिल लेना जाएगा तुम लोग। खैर देखो यहाँ तक समझ में आया, समझ में आ गया बुआ लोग? यस सर। मुस्कान? यस सर, समझ Good, में आ गया। good. So now look at here. Now we will go for the integration, right? So if you integrate this, so mu naught I W, these are constant terms, so come out. So dx upon x will be inside the integration. So now variation of x. So x will vary from, look at here. This is, so it is a minimum a and it is x plus a plus this distance a plus w। तो x कहां से कहां तक वेरी करेगा, a से a plus w तक, समझ में आ रहा है? तो यहां से a से a plus w तक कर दिया। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log राइट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x, और इस तरह से a to a plus w। अब a प्लस डब्ल्यू एक बार रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ln a प्लस डब्ल्यू माइनस ln a। तो ये रूल जानते हो, log a माइनस log b, दैट इज log a अपॉन b, ये जानते हो तुम लोग, तो यही चीज यहां लिखा गया है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ टू एवरीवन राइट? यस। श्योर? यस सर। या ठीक है, जिसको नहीं समझ में आएगा बताएगा राइट। चलिए नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क एट इट्स सेंटर राइट। जिनको भी थोड़ा बहुत समस्या है या फिर जो उसको लग रहा है कि मैं ये नहीं क्या हूं, तो इसको जाके पढ़ लोगे राइट। और मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं कि ये नोट्स आप सबों के बीच है, तो इसको पहले से पढ़ के रखिए राइट, ताकि मैं थोड़ा फास्ट कर सकूं और आपको फास्ट समझ में आ जाए, और फास्ट कोई चीज कैसे होता है उससे तुम वाकिफ हो जाओ राइट। नहीं तो ये भी हो सकता है मैं इसको एक करके एक सोल्व करूं, तो इससे हमको क्या फायदा, मतलब तुमको क्या फायदा होगा, यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट राइट। सो नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग आर्क at its center. So this is a wire, something like that. Current is flowing in this wire. So what will be magnetic field at its center? It is arc, right? Arc, something like that. It is not semicircle. It may be something like that. It may be something like that. So if you calculate general thing, suppose I've written here this is semi one, this is any kind shape, and this is only this part right. So if you calculate general magnetic field because of any arc at angle any theta or something like that, then you will find other things there. So let me I do that, then you will understand all the things very clearly. So look at here, this is a wire, right, that is called arc उसी को बोल रहे हैं, ये वायर है। Here current is flowing in this direction right, anti-clockwise. So this is the reference line, from here at angle theta
I have taken this length, that is d theta. This angle will be d theta. So what will be the value of this one? That will be, if radius is a, so it will be a d theta, right? You know very well, theta barabar LR. This is theta, this is R, this is L. So L is equal to theta R. So same thing is here. Angle is d theta and radius is a. So this length will be a d theta. Okay. So now same approach. So look at here. DL बराबर a theta. Clear? बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। No. Yes. So dB. So dB, because of this length, what will be magnetic field here? So mu naught upon 4 pi, and it is not because of this. Right now we were discussing mu naught I upon 2 pi a, or sometimes 4 pi a for semi infinite straight wire. So this formula will not applicable here. Here we are using general formula. Right? समझ में आ रहा है बात? ये यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा रहा है? जो जनरल था, जो शुरुआत में हम लोग सीखे थे. समझ पा रहे हो? नहीं Yes. समझ पा? ओके. देखो ध्यान दीजिए, करंट इस तरफ है, राइट, और जो ए है वो ए है इस तरफ. तो दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा, सॉरी 90 डिग्री. तो ये 90 डिग्री यहाँ पे है. वहां पे हम लोग सीखे थे ना, आई डी एल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर. यस या नो? Yes. भूल गया भाई. dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl cross r unit vector upon r square. Right? So I is I already on dl. So this length is how much? That is a d theta. I have written a d theta. चूंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है, उसको हटाया तो साइन 90 डिग्री है लिख दिया. और ये रेडियस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? a है, that is a square. So क्लियर यहाँ तक? Yes. Yeah, tell me. Yes. So now once again you will go integration. So these are common, constant come out, and d theta. So d theta, look at here. Theta will go from here, this is theta to beta. Beta to theta, that's written over here. That's depend on you. That means यहाँ पे देख लो. अब ये थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? अब वो डिपेंड करता है कहाँ से कहाँ तक जाएगा. जैसे मान लीजिए आपने ऐसा ले लिया, सेमी ले लिया, राइट, सेमी ऐसे ले लिया, राइट, और यहाँ से आपने ऐसे थीटा दिखा दिया कि भैया ये थीटा है. तो थीटा ये यहाँ तक जाएगा, तो थीटा 0 हो सकता है, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये मैक्सिमम 120 हो जाएगा. तो 0 मिनिमम हो गया और मैक्सिमम 180 डिग्री हो गया, राइट. So same thing is written here, right? If it is 0, I think it is 0 here. So 0 to beta. So beta minus 0, that will be beta. Are you getting my point? Yes. Yes. So look at here. That is very interesting. Question. So how much your result is here, right? How much result is here? So that depends on theta. How much theta you have. If you are taking from here 0 degree and it is, this angle is going to beta, so that will be beta, and for theta it will be theta 0 to beta. So beta minus 0, that is beta. Same thing. Okay. So now look at here. This question, that is also a good question. Current is going in this direction and here this direction. So there are 3 things. One part, second part, and from here to here, that is third part. So this is semi-infinite wire, and this is semicircle, right? This is semicircle. So because of this wire, you have to calculate at P. Because of this wire, you have to calculate at P. And because of this wire, you have to calculate field at P. So same thing is here. You can see B1, B2, B3, right? And you can see because of this 1 and this 2, both will be same. Yes or no? You can see here. Yes.
just to keep your thumb in the direction of current. For one, you will see at this point it will be coming outward, and for this also, for second one also it is coming outward. So that is right, b1 and b2, that will be 2b1. एक्चुअली ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, राइट, बट हमने अलग नोमेनक्लेचर दिया, बट दोनों ये सेम है इसलिए 2b1 हो गया, और इसको b2 बोल दिया तो ये b2 हो गया. अब b2 को निकालना है, तो देखो ये सेमी है ना, सेमी स्ट्रेट वायर है, तो सेमी के लिए देखो ये होता है म्यू नॉट आई 4 पाई आर, एंड ये के कैप हो गया. के कैप क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है इसलिए के जेड डायरेक्शन में हो गया. और ये वाला दिखा लिए, ये इसके कारण, तो इसके कारण अभी हमने निकाला, क्या निकाला देखो इधर, इसके कारण यहाँ पे भी हम निकाला था, क्या था यहाँ पे देख लीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. आर क्या है? रेडियस है, राइट, और बीटा, तो बीटा कितना जाएगा, वही थीटा है तो 180 माइनस समथिंग लाइक दैट. So here it is mu naught I upon 4 pi r, right? So look at here, mu naught I upon 4 pi r. Here it is, yeah. Mu naught upon 4 pi. Sorry, let me check. It should be not pi. Just a minute. सर यहाँ पे बीटा ही पाई है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा सर. Okay, that's nice. Just I'm checking. Don't worry. So, oh yeah, look at here. So mu naught 4 pi, and beta is pi degree here. I told you right now that if you have a circular motion, so it will be go from 0 to 180. 180, that is pi. So that's pi is here, and it is also in character. Just look at here. Current is going in this way, right? Going in this way. So one thing is very clear. Look at here. जब करंट ऐसे जा रहा था, राइट, तो अंगूठा रख रहे थे और उंगली से काम चला रहे थे. और जब करंट आर्क में चल रहा है तो क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में अपना उंगली रख लेंगे और अंगूठा हमारा करंट का डायरेक्शन देगा, राइट. समझ में आ रही बात? तो वही चीज यहाँ पे है आपका ये, कि यहाँ पे देखो करंट इस तरह से जा रहा है, राइट, ये करंट इस तरह से जा रहा है, यहाँ से इस तरफ से, राइट, इस तरह से जा रहा है करंट, एक मिनट, इस तरह से करंट जा रहा है, तो उस डायरेक्शन में आप अपना ये रख ले, अंगुली रख रहे, राइट, तो अंगूठा आप करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो वो भी आपको बाहर ही आता हुआ नजर आएगा. तो सारे के सारे पॉजिटिव की डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव की डायरेक्शन में हो गया. क्लियर है? और एक चीज और ध्यान रखना कि जब एक ही लूप में, जैसे देखो करंट ऐसे एक ही लूप बना रहा है, तो या तो इनवर्ट होगा या आउटवर्ट होगा. देख रहे हो ना, एक ही फ्लो में सारा है. या अगर मान लो ऐसे रहता तो इनवर्ट हो जाता, इधर से आते हो जाता. बट एक पिछला केस में हम लोग देखे थे कि वो दोनों डायरेक्शन में हो रहा था, तो उस केस में क्या तुम देखना कि एक फ्लो में नहीं रहेगा करंट, ठीक है, ओके, किसी में एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, किसी क्लॉकवाइज. तो ये देखो सारे जो है एंटी क्लॉकवाइज में आ रहे हैं, इसीलिए वो एक ही डायरेक्शन में आ गया. समझ में आ गया बात? यस. बोलो भाई, कुछ तो बोलो. यस सर. ओके, चलिए नेक्स्ट वी विल मूव. So at center, due to each DL element of the loop B at the C inverts in the case. Okay, B due to circular loop. Now question is B due to circular loop, right? So at center की बात किया जा रहा है, तो देखो सेंटर पे यहाँ पे एक छोटा सा लूप ले लिया, राइट, एक छोटा सा, तो इसके कारण तो सेंटर पे हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखो यहाँ लिखा है ड्यू टू ईच DL, छोटा DL एलिमेंट ऑफ द लूप B at C is inverts in this case. अगर करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, सो यू कैन सी हियर इट विल गो इन इनवर्ट, यस या नो. अगर अपने अंगुली को इसके डायरेक्शन में घुमाओ, मतलब क्लॉकवाइज घुमाइए, तो अंगूठा आपका अंदर चला जाएगा, राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर दिखा रहा है. समझ में आ रहा है बात? यस सर. यस. तो वो कितना होगा, तो डेट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ठीक है. और ये कैलकुलेशन से आपको निकल जाएगा, तो इसको ध्यान रखना. And that depends on number of turns in the loop. ये लूप का केस है, लूप का. जैसे इसमें बहुत सारा लूप बना दिया, 1000 लाइन बना दिया, तो एक के कारण है म्यू नॉट आई बाय आर, तो इन के चलते तो इन से बस मल्टीप्लाई कर दिया,
दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट। तो अगर लूप मतलब समझ रहे हो ना, बहुत सारे लूप होंगे ऐसे, तो एन के लिए वो होगा द लूप, ठीक है। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप। अब लूप का संख्या कैसे हम बताएंगे, तो देखो लेंथ ऑफ द लूप, जैसे ये तो बचपन में ही पढ़े हो तुम लोग कि एक वायर को ऐसे सर्कल में कर दिया गया तो इसका लेंथ हो गया 2 पाई आर। तो ऐसा ऐसा मान लो 100 गो हो, मतलब 100 लूप है, 100 टर्न है, तो 100 टर्न है तो इसको पूरा वायर की लंबाई कितनी होगी, राइट, तो गुना कर देंगे उतना से। तो वही चीज है, अगर लंबाई एल है पूरा वायर का और एक लूप में जो है इतना पेरीमीटर जा रहा है, तो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे। तो ये समझ में आ रहा है ना बात। यस yes, सर। यस, राइट, गुड। और एन कैन बी फ्रैक्शन और इंटीजर, इन फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। क्यों, चूंकि जो वायर का टर्न्स है, मान लो हम, ये भी तो हो सकता है कि लूप हम बना रहे थे और चार टर्न बना और 4 के बाद थोड़ा सा वायर रह भी गया, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा वायर और रह भी गया, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन में हो जाएगा। और अगर नहीं रहा तो वो इंटीजर में आ जाएगा, ठीक। सो नाउ डायरेक्शन ऑफ बी, राइट। सो डायरेक्शन ऑफ बी वही चीज जो अभी मैं आपको बता रहा था, ओके, कि अंगुली जो घूम रहा है उसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में रख दो, अंगुली को घुमा दो तो अंगूठा आपको बी का वैल्यू दे देगा, जस्ट अपोजिट, राइट। यहाँ पे भी देखो, ये करंट इधर जा रहा है, राइट, मतलब क्लॉकवाइज, तो ये अंदर चला गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये बाहर आ गया। कैसे पता करोगे, समझ गया तुम। सेमी सर्कुलर एंड क्वार्टर ऑफ ए सर्कल, ये देखो सर्कल है, ये सेमी है, तो एन कितना हो गया, 1/2 हो गया, तो वो जो फार्मूला निकाले तो उसमें 1/2 रख दो। ये देखो क्वार्टर है, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, ये पूरा अगर होता एन के वैल्यू अगर 1 होता एक लूप, तो चूंकि ये 4th पार्ट है तो 1/4 हो गया, तो उस फार्मूला में रख देंगे तो ये आ जाएगा। कितना आसान है ना। अरे बोलो भाई। यस सर। या sir, हाँ, मंटून कुछ बोल रहा है, या टेल मी। यही यस सर बोल रहे हैं। अच्छा, यस बोल रहे थे, ओके। ये जो चुप रह रहे हैं उसका क्या ख्याल है, यस या नो। यस सर। नो में कोई नहीं हो, ओके, टाइम नहीं आया है नो का, है ना, उसका भी टाइम आएगा। एनीवे, कम टू पॉइंट। So till now we have covered these all the things. Now it is circular one, magnetic field due to circular current loop। और आप लोग से एक मैं बात बोलूंगा कि ये जो भी फार्मूला है अलग अलग केस का एक कॉपी में लिखते चले जाओगे, राइट। और जब क्लास एक खत्म होगा तो मैं सबसे पूछूंगा, और सबको जुमा पे याद भी होनी चाहिए, राइट। तो एक जगह लिखोगे बहुत कुछ, बस फार्मूला लिखोगे और कुछ भी मत लिखोगे, बस एक छोटा सा फिगर बनाओ, जितना छोटा बना सकते हो और जितना छोटा में फार्मूला लिख दो। बहुत सिर उठा उठा के नहीं रख देना। जैसे देखो एन का वैल्यू में कर रहा था तो एक फार्मूला लिख दिए, उसी से सारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब सारे रिजल्ट भी नहीं लिखेंगे, बस एक रिजल्ट लिखेंगे। एक सीखा था तुम cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 वाला मैग्नेटिक फील्ड, राइट, उसका भी रखेंगे, उसका बस याद रखेंगे। बाकी जो उसके कारण डेरिवेशन निकल जाता है उसको याद नहीं रखेंगे, बस मेन चीज को याद रखना, राइट। ओके, सब कुछ याद रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, वही चीज याद रखना है जो जरूरत है, बाकी चीज को भूल जाओ। ओके, सो नाउ वी हैव अ सर्कुलर करंट लूप। तो इस तरह से सर्कल है, इस तरह से लूप है एक वायर का, और इसके चलते हमको यहाँ पे सेंटर पे निकालना है, राइट। तो ये पूरा ज्योमेट्री स्ट्रक्चर है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग फ्रॉम दिस फिगर, राइट। सो व्हाट इज हियर, सो दिस इज x डिस्टेंस फ्रॉम हियर and radius is a, this distance will be this much, and this is phi distance, you can see from here, right, it is phi angle, this is x, and this distance will be under root a square plus x square, you know very well. And then because of this point and because of this point, right, the what will be the b, right, what will be b. So you can see, just put your finger here, right, so when you will put finger here, so similarly you can see here dv will be in this direction, right, and here also you will find d is in this direction dv, two things। पहले ये बात हमको समझ के बता दो तुम लोग, फिर आगे कुछ भी नहीं है,
इसके कारण और इसके कारण, ये दोनों पॉइंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक इस तरफ में है और एक इस तरफ में है। बताइए। हम्म, यहां पे आप ऐसे रखो, यहां पे अंगूठा इस तरफ रख दो, इस तरफ, और अंगुली को ऐसे घुमाओ तो तुम देखोगे अंगुली तुम्हारा एक इस तरफ जाता रहेगा, और इस तरफ अंगूठा अंदर की तरफ रखो, मतलब अंगूठा जो है इस डायरेक्शन में रखो, तो उस तरफ रखोगे तो ये अंगुली जो डायरेक्शन है वो इस तरफ दिखाता रहेगा। ये दोनों चीज आना चाहिए। सब कोई करो और बताओ आ रहा है या नहीं। यस तो हाँ, आ रहा। आ रहा है सर पक्का। ए पे जो करंट अंदर की ओर और बी पे बाहर की ओर है। ए में बाहर हाँ की तरफ है और बी में अंदर की तरफ। यस यस, सर। तो भी आएगा। ठीक है, हम्म, ओके गुड। अब यहाँ आ गया तो फिर आगे फिर मामला क्लियर है। So now dB is in this direction and dB is in this direction. It is similar like that. अभी जो वायर में हम लोग किए थे ना, ऐसे वायर था और यहाँ पे P डिस्टेंस था, ये दोनों को निकाले थे, तो एक में इधर गया था एक में इधर गया था, फिर ये रिजल्टेंट निकाल लिए थे, ये 60-60 था तो ये भी 60-60 था। यही चीज यहाँ पे है। जैसे मान लो यहाँ पे एक वायर ऐसे जा रहा है और एक वायर ऐसे है, और इसको देखो ऐसे घुमा दो, घुमा दोगे तो ऐसा ही तो बन जाएगा। समझ रहे हो? यस। ये बिल्कुल यही क्वेश्चन है जो यहाँ पे था, बट यहाँ पे क्या है, डीएल लेंथ पे था और ये भी डीएल लेंथ पे था, बट ये इनफाइनाइट वायर था, ये सर्कुलर वायर है। बट अब ज्योमेट्री वैसा ही चलने वाला है। तो देखो ये फाई डिस्टेंस यहाँ से बना लेगा, चूंकि ये फाई है, और ये भी फाई बना लेगा, ठीक है, चूंकि ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला भी 90, वैसा ही चीज यहाँ पे भी था ना, यहाँ पे था ना ऐसे कुछ 90। तो देखो ये जो dB है, यू कैन टेक कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन आल्सो। फॉर दिस यू विल हैव अ कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन। तो देखो चूंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो ये वाला डायरेक्शन इसका और इसका जस्ट अपोजिट है और बराबर है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इधर। तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ dB साइन फाई। किस डायरेक्शन में, आई कैप में। ये हमारा फाइनल मैग्नेटिक डायरेक्शन। फील्ड हुआ, ये छोटा के कारण। अब चूंकि ये छोटा के कारण हम निकाल लिए, तब इसको इंटीग्रेट करा देंगे। कैसे होगा मामला, देखो इधर, देखो इधर, यहाँ देखिए dB इज dB समथिंग लाइक इट। देखो यहाँ पे आ गया ना, सिर्फ x में बचा, बाकी इधर देख लेना क्या क्या x में बचा, तो dB साइन फाई, राइट। सो dB इज दिस मच, dB इज दिस मच, म्यू नॉट अपॉन 4πr² इंटू dl, एंड ये साइन फाई है, तो ये bx निकल जाएगा यहाँ से। तो ये देखो अब इसको 2 टाइम्स से भी कर देगा। अब ये देखिए इधर, या तो bx देखो इतना निकल गया, ओके। एंड यूजिंग द फैक्ट्स दैट, ओके, ये वैल्यू इसमें यूज कर दिया गया, तो ये रिजल्ट आ गया, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। बस इसमें कैलकुलेशन और कुछ है ही नहीं। समझ में आई बात? ये देखो इधर आया ना dB साइन फाई, तो यहाँ पे एक इधर था और एक इधर था, तो 2 dB साइन फाई आ गया। अब 2 dB निकालोगे तो 2 dB क्या होगा, तो dB हमको निकालना पड़ेगा, राइट। तो dB क्या होगा, dB हम लोग जानते हैं, dB जो है क्या होगा, म्यू नोट अपॉन 4πI/dl इंटू आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर ये वाला है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। और आई तो आई ही रहेगा, dl कितना है, तो यहाँ पे dl, अब dl को जो है हमें यहाँ पे देखो नीचे लिखा गया इसमें देखिए, या आई dl साइन 90 डिग्री आर स्क्वायर और एक्स डायरेक्शन। हाँ चूंकि y में तो बचा नहीं, सिर्फ x में बचा, तो x में ये कितना डिस्टेंस है, ये देख लो, ये जो डिस्टेंस है वो x है, और r हमारा ये है। तो इफ यू गो फॉर आर स्क्वायर इट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स का, हाँ आर स्क्वायर यहाँ से आ गया, तो आर यहाँ पे देखो लिख दिया है, ठीक है, सही है। ये आर है, ये आर की जगह पे तुम ऐसे लिखोगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, ये आर बराबर, तो यही चीज यहाँ पे लिखा है। और बाकी बचा dl, ठीक है, तो dl को इंटीग्रेट करेगा, तो ये dl कितना है बोलो, ये छोटा सा dl है ना, तो ये पूरा dl करेंगे तो कितना होगा, तो ये होगा 2πr, कितना होगा 2πr। तो dl को अगर इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से, तो देखो यहाँ से 2πr लिखा है,
तो यही 2 पाई आर ए है। ठीक, तो यहाँ पे से आ गया, बात समझ में आया। और एक चीज और देखो, एक चीज और देखो कि यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ 2bx साइन थीटा 2db साइन फाई है ना, एक इसके लिए और एक इसके लिए, राइट। तो देखो जब दोनों के लिए जब हम लेंगे तो ये एंगल कितना हम घुमाएंगे इसको, देखो मैं थोड़ा सा अलग से समझाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, राइट। कंफ्यूजन होना बिग प्रॉब्लम। लाइक सी हियर, ये सर्कल है, ठीक है, हमने एक यहाँ से पॉइंट लिया था और एक यहाँ से लिया था, राइट, और हम लोग यहाँ पे ऐसे निकाल रहे थे, राइट। तो मैं ये बोला कि इसके कारण इधर है और इसके कारण इधर है, और दोनों का रिजल्टेंट कराएंगे तो इधर होगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा b साइन थीटा का, राइट। बट क्वेश्चन में इधर देखो 2 नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, बात समझिए। मैं इसको भी ले रहा हूँ और इसको भी आधा ले रहा ले हूँ, रहा। राइट। और देखो इसको मैं पूरा घुमा Yes. रहा हूँ, तो पूरा घुमाऊंगा तो क्या होगा, इसको जब मैं यहाँ लाऊंगा तो ये ऑलरेडी यहाँ चल जाएगा। तो देखो ध्यान समझना, ये पॉइंट को मैं यहाँ लेके चला गया तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट इसको कवर कर रहा है, ये इसको कवर कर रहा है। अब इसको यहाँ लेके आ गया तो ये इसको कवर कर लेगा, इसको मैं यहाँ लेके आ गया तो ये इसको कवर कर लिया, इस पॉइंट को अब यहाँ लेके चला गया जस्ट, इस पॉइंट फिर यहाँ आ जाएगा तो ये एक कवर कर लिया और ये इसको पूरा कवर कर लिया, मतलब इसको आधा ही घुमाने पे पूरा कंप्लीट हो गया। आर यू गेटिंग पॉइंट? यस सर। समझो ये आगे भी तुमको लॉजिक काम देगा, ठीक है। ये सर्कुलर है तो इस एक पॉइंट हमारा, चूंकि एक ही बार में हम 2 पॉइंट लिए हैं तो आधा ही इंटीग्रेट करेंगे ना, तो ये जो हम 2 पाई आर कर रहे हैं वो 2 पाई आर हमको नहीं घुमाना है, हमको पाई आर ही घुमाना है, ठीक है। तो 2 चीज हो गया, या तो तुम सुनो ध्यान से, या तो तुम यहाँ 2db साइन फाई ले लो एक ही बार में, और नहीं तो फिर अगर यहाँ 2db साइन फाई लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, बोलो पाई आर आएगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पाई आर आएगा, 2 नहीं आएगा फिर। बट इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक ही एज्यूम किया है और एक से लेकर के 2 पाई आर घुमा दिया है, ये समझ में आना चाहिए। यस या नो, टेल मी एवरीवन। यस यस। यस। आया ना समझ में? और ये कंसेप्ट आपको आगे भी काम देगा, रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी आप निकालोगे हर जगह काम देगा। तो ये आपका रिजल्ट आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सर्कुलर करंट, अब सर्कुलर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का लूप ऐसा होगा, मतलब ये देखो लूप है और इसमें करंट भाग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से फैल जाएगा, राइट, इस तरह से फैल जाएगा, इसका मतलब यही हुआ, राइट। अ लूप एज अ मैग्नेट, अ लूप एज अ मैग्नेट, मतलब लूप है वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। और यहीं पे फिर हम लोग पढ़ेंगे लेंस लॉ, समथिंग लॉ, कुछ कुछ ऐसा है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एंड देन वी विल मूव फॉर द सोलेनोइड। So till now we have covered very less amount of